آج کی ویڈیو میں ایک بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں جس میں آپ کو ہماری نئی سروس ملے گی. بات کریں گے آج کے سیشن پر بھی اور ہم آنے والے سیشن میں کیا ہونے والا ہے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو کسی بھی لاس سے بچایا جا سکتا ہے اور کس طرح زیادہ سے زیادہ پروفٹ اس مارکیٹ میں لیا جا سکتا ہے ملک کی اس معاشی اور سیاسی صورتحال کے باوجود. السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 16 جنوری کی کال لے کر. سب پہلے بات کرتے ہیں آج کے سیشن کی. تو میں جب آج کے سیشن کی بات کروں گا تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ یہ جانیں کہ ہم نے آپ کو کن کن باتوں پر توجہ دینے کے لیے کہا تھا اور کیا کیا ہوا تھا. تو جناب اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو جو ویکینڈ پہ کال دی گئی اس پہ کچھ باتیں بڑی واضح طور پہ بتا دی گئی تھی کہ مارکیٹ میں والیوم پیٹرن کیسا ہے اور مارکیٹ میں جو اوور آل سچویشن ہے. میں چیٹا چیٹا باتوں پر آپ اگر پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز پر جائیں گے تو وہاں پر میں نے ویکینڈ کال میں کیا لکھا. پہلے میں نے لکھا کہ مارکیٹ ایک حد میں ٹریڈ کر رہی ہے، ان رینج ٹریڈ کر رہی ہے. پھر میں نے لکھا کہ بڑے اسٹیک ہولڈر تھوڑے بیک فٹ پہ نظر آ رہے ہیں. پھر میں نے لکھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں کچھ کمی آ رہی ہے، فورن انفلوز کم ہو رہے ہیں. اور اس کے باوجود میں نے یہ بھی لکھا کہ مارکیٹ بے شک پرکشش ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو حکمت عملی تبدیل کرتے ہیں. یہ تمام باتیں کل کی مارکیٹ میں تھی. والیوم پیٹرن کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا گیا تھا اور ہم اس بات کو بھی ڈسکس کر چکے تھے کہ جو مارکیٹ میں کچھ اسٹاک ایسے ہیں جو والیوم بہت اثر ڈال رہے ہیں، جیسے کہ کراچی الیکٹرک تھی اور پی آئی بی ٹی ایل تھا، ڈبلیو ٹی ایل تھا. بڑے بڑے والیوم نظر آ رہے تھے اور آج ان کے والیوم دیکھیں. اور جو اہم ترین بات میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتاؤں گا کہ آج کے والیوم اس حد تک گرے ہیں کہ اس سے پہلے اتنے والیوم جو ہم نے ریسنٹلی دیکھے ہیں وہ 30 نومبر کو تھا. اب یہاں پر آپ کے سامنے یہ جو ریپ اپ چارٹ ہے اس میں میں نے آپ کو آج کا سیشن دکھایا ہے. سب سے پہلے جو بڑا چارٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ چونکہ 65,355 کے قریب بھی نہیں جا سکی تو لہذا مارکیٹ کو صرف ایگزاسٹ ہونا تھا. یہ بات کل کی کال میں بڑی واضح طور پہ بیان کر دی گئی تھی. اب آپ مارکیٹ کی کمفرٹیبل سلائیڈ دیکھیں کہ بی ایکس کتنی آرام سے پورا دن نیچے اترتے رہے اور 64,130 تک آئے. یہ جو پری اوپن ہائپ ہوتی ہے یہ مارکیٹ کو وہ روم پرووائڈ کر دیتی ہے کہ جس میں مارکیٹ اپنا بینڈ وتھ 1000 پوائنٹ کا بنا لیتی ہے. اگر آپ دیکھیں ہائی اور لو کو تو کم و بیش 1000 پوائنٹ تو مارکیٹ موو کر گئی. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پری اوپن ہائپ ہوتی ہے یا اس کے بعد مارکیٹ کھلنے کے بعد جو کچھ تھوڑی بہت بلز کی اسٹرگل نظر آتی ہے وہ ہمیں بڑی آسانی سے اپنے ان اسٹاک سے پروفٹ ٹیکنگ کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے جو ہم لیے بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہم لے کے جاتے ہیں، جو ہم ہولڈ کرتے ہیں. ہمیں باقاعدہ مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ مارکیٹ اچانک گر جائے. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں نا کہ مارکیٹ ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایسی خطرناک نیوز آ جائے چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پوزیٹو ہو، دونوں صورتوں میں مارکیٹ ڈس ریگارڈ کرتی ہے لیول کو اور سیدھا سیدھا اس فنڈامنٹل نیوز کو فالو کر لیتی ہے. مگر اگر نارمل طریقے سے مارکیٹ چل رہی ہو تو مارکیٹ بہت ساری انڈیکیشن دیتے ہوئے چلتی ہے. تو یہی بات میں نے یہاں بتانے کی کوشش کی ہے کہ مارکیٹ بار بار بتا رہی ہے پچھلی چند کالیں اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت ہو سکتی تھی. پھر یہاں میں نے ایک اور چھوٹا چارٹ آپ کو دکھایا ہے جس میں 100 انڈیکس کا چارٹ ڈیلی اور آورلی ان دونوں میں دکھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو تقریباً 10-12 سیشن ایسے ہیں کہ ایک رینج میں مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے. مارکیٹ اسٹرائک کرتی ہے ایک مخصوص ایریا میں اور پھر وہاں سے ایگزاسٹ کر جاتی ہے، بار بار اسٹرائک کرتی ہے اور ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. اب یہ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسا کون سا ایریا ہے جہاں سے مارکیٹ کو ایگزاسشن یا ریجیکشن ملتی ہے، جس کو ہم اکثر سپلائی زون بھی کہتے ہیں. اگر آپ اس سپلائی زون کو سمجھ لیں تو پھر مارکیٹ کی ریجیکشن کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. اور یہی چیزیں ہم سمجھانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ سینٹیمنٹل انالیسس پر توجہ دیں. اور اگر آپ سینٹیمنٹل انالیسس پر توجہ دیں گے تو دوران مارکیٹ آپ کے فیصلے بڑے درست ہو سکیں گے. اچھا جناب، یہاں چلتے چلتے ایک بات میں اور بتاتا چلوں آپ کو
کہ अगर आप लोग वीडियो पे कोई इंडेक्स के हवाले से या कोई तज्जियाती हवाले से अगर सवाल करते हैं, स्क्रिप्ट पर नहीं, इंडेक्स पर तज्जियाती हवाले से, सीखने के हवाले से, किसी में कोई सीखने की बात हो, तो ऐसे कमेंट अगर आप जरूर करेंगे तो यकीनी तौर पे मैं उसका जवाब भी दूंगा और अगली कॉल में कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको बता सकूं, समझा सकूं, क्लियर कर सकूं। क्योंकि हमारी शुरू दिन से ये कोशिश है, जब से सेफली इन्वेस्ट ट्रेडिंग और लेवल्स का कयाम आया, हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आप ट्रेड करें सीख और समझ कर। बहुत सारे लोगों को पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज को जानना होता है, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि वो वीडियो को फॉरवर्ड करके सीधा वहां पहुंच जाए जहां पर हम ये बता रहे होते हैं कि कल क्या होगा, और वो उसको सुन ले। मगर मैं अपने मेंबर्स और फॉलोअर जो मेरे साथ राब्ते में रहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोर्सेज करते हैं हमारे साथ, उनके लिए मैं इतना टाइम लगाता हूँ, तवज्जो देता हूँ, ये स्लाइड्स बनाना और फिर इस पे तफसील से समझाना, और उनकी ट्रेडिंग कितनी बेहतर हो रही है, ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है इसकी जमानत है। अच्छा जनाब, चलते हैं प्रिसाइज लेवल टेबल पे। इसमें थोड़ी सी तब्दीलियां हैं, मगर बहरहाल कमो बेश वही लेवल है, अपडेट कर दी गई है। कौन से लेवल अब मजीद स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं ये बताने की भी कोशिश की गई है। अच्छा जनाब, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। आप चाहें तो इसका प्रिंट शॉट भी ले सकते हैं, ताकि बाद में अगर आपको पढ़ना हो तो ये बातें आपको याद दहानी करा सकती हैं कि मैंने क्या कहा था। तो आप जरूर इसका प्रिंट शॉट लें और जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये प्रिंट शॉट को अपने सामने रखें। टेक्निकली मार्केट जो है बिल्कुल उसी तरह मूव हुई है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई हैरान कुन बात मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, कंफर्टेबल स्लाइड है, ठीक है ना, जहां हाई बना वहां से लो तक आना, ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। और आज जो मिड डे कॉल भी 12-1 बजे मैंने इतनी जरूरी ही नहीं समझी, 2 बजे के बाद से मैं आपको अपडेट फिर भी करता रहा हूं और मार्केट की सूरत हाल से आगाह करता रहा हूं। अगर आप ये देखें कि मार्केट का जो लो है अभी भी उन सपोर्ट्स के आसपास है जिनका तस्करा कल की कॉल में किया गया था। तो मकसद ये है कि मार्केट में वो एग्रेशन अभी डेवलप नहीं हुआ, बेशक स्लाइड हुई है, वो एग्रेशन डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, और मगर आज के सेशन को अगर देखें और उस स्लाइड को देखें, उस तसलसल को देखें, तो यकीनी तौर पे ये बात तो नजर आती है, कुछ घबराहट की सूरत हाल नजर आती है कि मार्केट में ये खौफ या डर पाया जाता है एग्जॉस्शन का। और मैं इस एग्जॉस्शन को कंटिन्यू देखता हूं आने वाले सेशन में। अगर वॉल्यूम्स और ट्रेंड का पैटर्न यही रहेगा तो मार्केट यकीनन एग्जॉस्ट होगी। अब अगर अगर आपको इसको समझना है तो आपके लिए भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर मार्केट 64,240 200 के नीचे ट्रेड कर रही है तो मतलब ये है कि वो अपनी एग्जॉस्शन को कंटिन्यू करना चाहती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे मेंबर या फॉलोअर यहाँ पे निकले हैं। मेरे मेंबर और फॉलोअर पहले निकल चुके हैं, अब हम कुछ और करने जा रहे हैं। बल्कि मैंने नीचे यहां तक लिखा है कि अगर मार्केट कोई प्री ओपन हाई बनाए और 64,383 358 के पास भी जाती है तो मुझे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है मार्केट से कि मार्केट कुछ परफॉर्म कर पाएगी। बल्कि मैंने तो आगे जाके यहां तक लिखा है कि 64,990 तक भी चली जाए तब भी मार्केट के नीचे आने के चांसेस बरकरार रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम लेवल जो आपका है बुल्स की सीरियस एफर्ट्स के लिए वो 64,990 का है। एक बात हमने ये समझ ली। दूसरी बात है कि हर लेवल के बारे में एक बात लिखी हुई है, मगर उसके साथ दूसरी बात आपको कुछ समझनी है। रोजाना इतनी तफसील से कॉल देने का मकसद ही यही होता है। तो 64,990 तक ये चांस बरकरार है कि मार्केट नीचे आएगी। तो उसका दूसरा मतलब जो कि लिखा हुआ नहीं है वो ये है कि कम से कम इस लेवल के ऊपर मार्केट को रुकना होगा अगर बुल्स को सीरियस एफर्ट करनी है। उसके बाद मैंने एक लाइन लिखी है कि इस बात का यकीन कि नई रैली मार्केट में आ रही है वो 65,355 के ऊपर है। ये वीकेंड पे भी आपको कहा गया, अभी भी इसी बात को दोहराया जा रहा है, कोई नई बात नहीं है कि मार्केट में अगर अब रैली बननी है तो मार्केट को 65,355 के ऊपर ट्रेड करना होगा। और अगर आप मार्केट को कल 64,383 या 64,605 तक भी जाता हुआ देखें तो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए और मार्केट से निकलने की कोशिश कीजिए।
हाँ, सस्टेनेबिलिटी है। और आपको जो स्टॉक्स दिए जाते हैं स्पेसिफिकली, उन पे अगर आपको मूव नजर आती है, उनकी भी अलग से इसी तरह समझाया जाता है। अब आप देख लीजिए आज खुद कुछ स्टॉक कैसे हैं जिन्होंने किस तरह परफॉर्म किया बावजूद इस कंफर्टेबल स्लाइड के। न सिर्फ उन्होंने आपको एंट्री दी, एग्जिट दी, और उसके बाद दोबारा एंट्री दे रहे थे। तो ये अगर आप इन तमाम चीजों पर फोकस करेंगे तो मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी से मुस्तफीद हो सकेंगे। यहाँ पर एक बात मैंने और ऊपर कही थी कि मार्केट पुरकशिश है उनके लिए जो लोग हिकमत अमली को तब्दील करना सीखते हैं। इसका क्या मतलब है? जब मैंने अभी कहा कि मेरे हिसाब से तो आप लोग मार्केट से आउट है, अगर आउट है तो अब आपकी कौन सी हिकमत अमली है? अब आपकी हिकमत अमली सीधी सीधी दिसंबर पोर्टफोलियो को टारगेट करने की। और आज इंशाल्लाह स्क्रिप्ट कॉल जो मैं दूंगा उसमें जो दिसंबर पोर्टफोलियो के स्टॉक है उसका एनालिसिस को रिफ्रेश करूंगा, जो आपको बाइंग रेंजेस दी गई है, अगर किसी के आपको टारगेट नहीं मिले तो उसको रिफ्रेश करूंगा। अगर उसकी बाइंग रेंज में भी कोई फर्क आ रहा है या कोई नई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है तो उसको रिफ्रेश करूंगा। तो तब्दीली जो हिकमत अमली में है वो ये है कि अगर ठीक है मार्केट अगर थोड़ी सी डिप्रेस है, डाउन स्लाइड है मार्केट में, तो कोई टेंशन नहीं है, तो सही जगह पे पहले एग्जिट ले लेना और उसके बाद नई हिकमत अमली पर अमल करना। नई हिकमत अमली क्या हो सकती है मौजूदा सूरत हाल में? एक तो पोर्टफोलियो बाइंग, ठीक है, तो उसके लिए टारगेट बाइंग होगी। दूसरा ये कि जो शॉर्ट टर्म बाइंग है उसको हम ज्यादा कोशिश करेंगे कि हम स्विंग ट्रेड फॉलो करें, हम उस ट्रेड को फॉलो करें जो हो सकता है 1 से 3 दिन ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे 3 दिन तो ज्यादा है, दूसरे दिन में आपका माल निकल जाता है। तो हम जो शॉर्ट टर्म ट्रेड 2 से 4 घंटे में करते हैं, हम उसको 1 से 2 दिन या 3 दिन में कर लेंगे। तो ये हिकमत अमली की तब्दीलियां जो हम करते हैं, इससे हम इस मार्केट में अपने लॉसेस को भी कम कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी ले सकते हैं। तो जनाब बड़ी तफसील से समझाया है, इसको फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये कामयाबी का बाज बनेगी। अब बात कर लेते हैं उस न्यूज सर्विस की या उस खुशखबरी की जो हमने आपको वीडियो के शुरू में बताई। हम ये सोच रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हमारे पास रोजाना आते हैं, जिसको कई दफा वीक डेज में तो जवाब देना काफी मुश्किल हो जाता है। कभी हम एक वीडियो की शक्ल में उसका जवाब दे देते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि हफ्ते में एक या हफ्ते में दो हम लाइव सेशन आपके साथ यूट्यूब पे करें, जिसमें आप लाइव हमसे सवाल कर लें और हम लाइव आपको जवाब दे दें। अगर सवाल ऐसा होगा जिसको समझाने के लिए हमें कुछ चार्ट्स या कुछ ऐसी चीजों की जरूरत होगी, तो हम आपको फिर अपनी अगली वीडियो में उसका जवाब दे देंगे। और अगर फौरी जवाब आपका ऐसा होगा, ऐसा सवाल होगा जिसका फौरी तौर पे जवाब दिया जा सकता है, तो हम फौरी तौर पे भी जवाब देंगे। इसमें ज्यादा सवालात अगर आप ऐसे रखें जिसमें इंडेक्स और स्ट्रेटजी और एजुकेशन तजियाती सवालात हो तो बहुत मुनासिब होगा, आसानी रहेगी। अगर आप स्क्रिप्ट के हवाले से सवाल करेंगे, कोशिश करूंगा जहां तक मैं आपकी मदद कर सकूं करूं, मगर स्क्रिप्ट के हवाले से मैं इतनी बात करता नहीं हूं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो मैं अपने क्लाइंट्स एंड मेंबर्स के साथ करता हूं। तो स्क्रिप्ट की बात मैं उनके साथ करता हूं। अगर कोई आपका ऐसा सवाल है जो फौरी तौर पे मैं आपको जवाब दे सकता हूं तो जरूर दूंगा। और अगर कोई जवाब ऐसा हुआ जिसको आपको तफसील से बताना पड़े या उसके लिए आपको चार्ट दिखाना पड़े, तो फिर वो हम वीडियो में शामिल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये कॉल और ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार होती है तो अपने दोस्तों और अहबाब में जरूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मामलात बताइए कि आप हमसे क्या जानना चाहते हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।